It's myself Kedar Badeka, and today I'm taking the 16th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we tried to understand the basic heat treatment process, and in the previously series of the lectures, we basically understand about the classifications of heat treatment process, basic understanding about the heat treatment process, why we are basic purposes of the heat treatment process. Then we start the classifications of the heat treatment process. The classification of heat treatment process are divided into the two categories, right? Basically, we are doing the heat treatment process to alter the uh, two types of the properties of the steel. Either we have to either we can use the heat treatment of the steel to change the bulk properties of the steel, यानी हमें एक तरीके से जो पूरी अपने पास जो प्रोडक्ट है जो स्टील की उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है. आइदर वी कैन यूज द हीट ट्रीटमेंट टू चेंज और टू अल्टर द surface properties of the steel, right? Then we try to understand about the annealing process. The annealing process, which is divided into the four categories of the annealing process, which is the the process annealing process, recrystallization annealing process, trace relieving annealing process, and full annealing process, right? Then we try to understand or try to discuss or try to learn about the normalizing process. Why we are doing the normalizing process, the annealing process and the normalizing process? There is a basic difference is that what happened in the annealing process, and in annealing process we are doing the cooling process, right? The heat treatment cycle, which is divided into the three categories, three basic steps of the heat treatment process. First, you have to uh, uh, apply the temperature, right? You have to apply the heat. Then you have to hold your steel into that temperature range, and then you have to cooling you have to cool that steel to alter that property. So the cooling has a or cooling which is creating some kind of the difference in the uh, in the normalizing and annealing process. In the annealing process, we are doing the cooling of that steel into the furnace, into the closed chamber of the furnace, while in the same time in the normalizing we are doing the cooling in the normal air ओपन कंडीशंस. नॉर्मल एयर ओपन कंडीशन यानी हम एक खुले के अंदर जो है उसको उस चीज़ को जो है वो हम कूल कर सकते. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस और द एनलिंग प्रोसेस, राइट? देन we try to understand the different ranges of the heat treatment process, right? Then the third thing, we try to understand about the hardening process, why we are doing the hardening process. In the hardening process, the basic difference between the normalizing process and the hardening process is that what happened in the normalizing process. In the normalizing process, we are doing the cooling with the air open air conditions, right? Open air यानी आप खुले में छोड़ के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. Now what happened in the hardening process? We are doing the cooling in the hardening process with the quenching medium, राइट? क्वेंचिंग यानी आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट क्वेंचिंग जो है वो मीडियम जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी. यानी आप ऑयल ले सकते हैं, राइट? उसको जैसे आपने गर्म कर दिया, राइट? आपने हीट अप्लाई की, यानी उस टेम्परेचर रेंज को आप स्टील को लेके गए. फिर उस टेम्परेचर रेंज के ऊपर आप प्री डिफाइंड टाइम के साथ जो है उस टेम्परेचर के ऊपर आप सर्टेन टाइम तक जो है उस स्टील को गर्म करेंगे, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है. अब उसको कूलिंग जो करना है वो कूलिंग हार्डनिंग के अंदर हम कूलिंग कैसे करेंगे? तो सीधा उस स्टील के प्लेट या ऑब्जेक्ट को निकाल के सीधा किसी लिक्विड के अंदर, किसी क्वेंचिंग मीडियम, क्वेंचिंग दैट मीन्स दी वन टाइप ऑफ द कूलिंग प्रोसेस, जिसके अंदर उस हीट किए हुए ऑब्जेक्ट को आप सीधे जो है उसको वहाँ के उठा के जो है वो आपको सीधा क्वेंचिंग मीडियम, यानी क्वेंचिंग मीडियम के अंदर आप जो है वो वाटर ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, कैरोसिन ले सकते हो, सॉल्ट वाटर ले सकते हो, राइट? ब्राइन ले सकते हो. तो इस चीज़ के अंदर सीधा आपको डुबा देना है. तो इस तरीके से उसका इमीडिएट कूलिंग हो जाएगा, और इमीडिएट कूलिंग की वजह से जो है उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, पर सब उसके साथ जो है उसकी ब्रिटलनेस भी है वो अफेक्टेड
होती है, राइट। अब हार्डनिंग प्रोसेस तक हमने वहाँ तक स्टडी किया था। अब आज जो हमें स्टडी करना है वो चीज़ जो है दैट इज़ दी हार्डनेस के ऊपर है। जैसे हार्डनेबिलिटी थी ना, हार्डनेबिलिटी के साथ ही एक जो है वो एक प्रोसेस की जाती है। जैसे अब आपको ये तो पता चल गया कि हम लोग हार्डनेबिलिटीज़ जो है वो क्यों करते हैं, क्योंकि हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए। पर हार्डनेस मेज़र कैसे करें? तो हार्डनेस मेज़र करने के लिए आपके सिलेबस में एक जो है वो इसका लैब एक्सपेरिमेंट्स है, उसको हम जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट यानी जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट भी बोल सकते हैं और जोमिनी हार्डनेबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। हार्डनेस चेक करने के लिए जो है वो जोमिनी नाम का एक जो साइंटिस्ट था उसने ये जोमिनी हार्डनेस टेस्ट जो था यानी क्वेंच टेस्ट था वो डेवलप किया था। और इसके अंदर जो है वो हम लोग करेंगे कैसे, राइट। तो ये जो लैब फैसिलिटी है वो लैब फैसिलिटी अपने कॉलेज के अंदर भी अवेलेबल है, राइट। इसके अंदर मैं बेसिक आपको स्टेप बताऊँ ना, स्टेप आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो प्रोसीजर के अंदर आप फोकस करिएगा। तो प्रोसीजर के अंदर क्या फोकस है? यू हैव टू हिट द स्टील। आपने एक स्टील लिया जिसका ग्रेड था 1080 यानी वो बेसिक कमर्शियल स्टील है। उसका एक बार लेना है, राउंड बार। अप्रोक्सीमेट उसका हाइट यानी उसका लेंथ जो है वो कितना होगा? जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होगा वो 100 mm का लेंथ होगा। अब उसका डायमीटर जो है वो 12 से 14 mm, जो M12 M14 जो रहता है वो उसका डायमीटर होगा, राइट। अब उस स्टील को जो है वो आपको क्या करना है, फुल ऑस्टेनाइजिंग स्ट्रक्चर तक यानी आपको 925 यानी आपका जो 923 डिग्री है यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट है, उस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट तक उसको हीट करना है। यानी ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्नेस के अंदर उसका हीटिंग होगा। सेकेंड, जैसे ही फर्नेस के अंदर उसका 925 या 923 डिग्री तक हीटिंग हो जाता है उसके बाद फर्नेस में से आपको उसको निकालना है। एंड अब उसको कहाँ पे लाना है, यानी आपको जोमिनी हार्डनेस टेस्ट का जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो है वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे ये जो बार है ना वो बार वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा उसको वहाँ पे आपको रख देना है, छोड़ देना है। वो वर्टिकल वहाँ पे स्टैंड यानी वो खड़ा रह जाएगा। जैसे ही खड़ा रह जाएगा तो उसके नीचे जो है ना वो पूरा कैसे सिस्टम रहता है कि जैसे आप वॉल स्टार्ट करोगे, राइट, आप जैसे ही वॉल स्टार्ट करोगे तो उसको वहाँ से जो है वो नीचे पानी का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब पानी का फ्लो जो है वो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, एक जेट रहेगी, जेट, राइट, उसमें से पानी जो है वो ऊपर की साइड यानी वो कहाँ पे जाएगा, जो सीधा हमने बार जो उसको अरेंज किया ना वो बार के ऊपर पानी जो है वो छिड़केगा नीचे से, राइट। जैसे ही वो बार के ऊपर से पानी छिड़केगा तो बार उस ये प्रोसीजर को आपको 10 मिनट तक करना है, राइट। यानी अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे ही वो 10 मिनट के बाद वो है वो एक्चुअली वो जो है वो ठंडा हो जाने की कोशिश करेंगे वो, और 10 मिनट के बाद जो है वो ठंडा हो जाएगा। अब उसको जो है वो आपको हार्डनेस टेस्टिंग के लिए जाना है। अब हार्डनेस जो है वो हम लोग 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। जो हार्डनेस जो है वो चेक करने के 3 स्टैंडर्ड्स हैं। यानी आप जो हार्डनेस है वो रॉकवेल हार्डनेस भी मेज़र कर सकते हो, ब्रिनल हार्डनेस भी मेज़र कर सकते हो और वीकर हार्डनेस भी मेज़र कर सकते हो। नॉर्मली मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए जो है वो वीकर हार्डनेस जो है वो यूज़ होता है। रॉकवेल जो है ये रॉक यानी क्या होता है, रॉक जो है ना वो पत्थर रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉक, राइट। जो सिविल स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना वो कितने हार्ड है। सपोज कि आपने देखा होगा कि आपके पास से कोई कंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ पत्थर है, कुछ ईंट है, राइट, उसकी हार्डनेस क्या है वो आपको मेज़र करके फिर आप वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए जो सिविल एप्लीकेशंस के लिए जो हार्डनेस टेस्टिंग यूज़ होता है दैट इज़ दी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। हमारे काम का जो सबसे इफेक्टेड जो है दैट इज़ द वीकर हार्डनेस। वो जो है वो कैसे काम करता है, यानी आपको उस स्टील ऑब्जेक्ट को वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के अंदर रखना है। अब वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन जो होता है उसके अपर साइड के ऊपर, राइट, एक टूल तरीके से होता है। वो टूल जो है वो डायमंड शेप टूल होता है। अब डायमंड शेप टूल जो रहता है वो उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर आपको 2 चीज़ जो है वो सेट करनी है। एक आपको सेट करना है फोर्स, यानी आप 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई करेंगे और कितने टाइम तक करेंगे, यानी आपका टाइम हो गया जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड
इतने सेकंड्स में ही टाइम रहता है। तो वो डायमंड जो है जो टूल है वो कितना, वो फोर्स 10 किलो न्यूटन के फोर्स के साथ वो कितना अपना इम्प्रेशन जो है, वो डायमंड इम्प्रेशंस है, वो आपके ऑब्जेक्ट यानी स्टील बार के ऊपर जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट? कितना इंप्रेशंस रहेगा, फिर उसके जो है वो डायगोनल क्रॉस सेक्शंस जो है वो मैच मेज़र होते हैं, और उस हिसाब से जो है उसका उसकी जो हार्डनेस जो है वो मेज़र होती है। यानी ये जो था वो पूरा जोमिनी एंड क्वेंच टेस्टिंग मशीन था, या फिर जोमिनी हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स था, पूरा प्रैक्टिकल इसके ऊपर था। अब कल यानी मंगलवार और बुधवार जो उसके जो मेरे लेक्चर रहते हैं एमएसएम में, उस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ दो जो है वो लैब शेयर करूंगा, राइट? अब वो लैब में एक प्रैक्टिकल जो है वो पूरा वीडियो है, पूरा जोमिनी हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है वो आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, राइट? और एक में जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का आपके साथ वीडियो, यानी अपने जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन के अंदर घर पे है तो उसको साथ साथ जो है वो लैब प्रैक्टिकल्स जो है वो भी कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो 2 दिन हो गए ना, वो आपके साथ मैं लैब जो है वो शेयर करूँगा। उसी तरीके से लैब को आपको एक्सपेरिमेंट देख के सेम आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस में लिख देना है, राइट? तो ये जो था वो जोमिनी हार्डनेस टेस्ट था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर वो एक बार एक्सपेरिमेंट जो मैं कल शेयर करूँगा आपके साथ वो देख लेने के बाद जो है वो आप एक बार देखिएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? तो ये जो था दैट इज़ दी ये जो था हमने अभी तक जो स्टडी किया दैट इज़ दी जोमिनी हार्डनेस टेस्ट। अब टीटीटी डायग्राम जो है वो हमने एक बार स्टडी करने की कोशिश की है। वो 2 तरीके से प्लॉट किया जाता है, राइट? जो है उसका जो टेम्परेचर लिमिट रहता है वो नॉर्मली जो रहता है वो अपर क्रिटिकल लोअर टेम्परेचर जो रेंज होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उसके नीचे तक जो है वो उसको प्लॉट किया जा सकता है। वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर रहता है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो है वो टाइम रहता है। हम लोग स्टील को जो है वो डिफरेंट यानी ये जो टीटीटी डायग्राम और सीसीटी, यानी ये हो गया आपका टीटी दैट इज द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम। स्टील के अंदर जो है वो उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, राइट? उसके स्ट्रक्चर में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होता है टाइम और टेम्परेचर के साथ। इसी तरीके से एक डायग्राम जो रहता है वो सेम डायग्राम सेम ही है पर उसका नाम जो है वो क्या है, CCT यानी क्रिटिकल कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। यही डायग्राम के साथ आप जब हीट किया तब जो अब हम जब टाइम के साथ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ स्टील के अंदर क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इसी तरीके से हम लोग सेम प्रोसेस जब कूलिंग करते हैं दैट इज द क्रिटिकल कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज क्रिटिकल कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। अब कूलिंग करेंगे तब क्या चीज़ हो सकती है, ड्यूरिंग द कूलिंग जो है वो स्टील के जो है वो क्या फेस ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, राइट? आप देखोगे तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट लाइंस जो है प्लॉट की है। इस डायग्राम को है टीटीटी डायग्राम को हम एस कर्व भी बोल सकते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर जो है वो एक एस तरीके का कर्व जो है वो पूरा क्रिएट हो रहा है, राइट? जैसे ही आप देखोगे तो आपके पास जो टाइम्स है वो सेकंड्स के अंदर दिया गया है। आप धीरे धीरे जो टाइम जो है वो इनिशियली 0 पे था, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नॉर्मल उसका जो स्टील का अंदर जो स्ट्रक्चर्स रहता है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो मार्टेनसेटिक और ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर्स रहता है। ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज द यूटेक्टॉइड स्टील के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज 0 to 0.8%, राइट? अब इसके बाद जो है उसको जैसे ही हम लोग हीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक लाइन जो पहला सबसे बड़ा जो लाइन जो है वो 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर क्रिएट होता है दैट इज द M19। वहाँ तक जो है वो M19 और M15 दो मार्टेनसेटिक 19 मार्टेनसेटिक 15 और 200 डिग्री के ऊपर आप देखोगे तो 220 के आसपास जो है वो एक MS लाइन दैट इज द मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट? जैसे ही आप 200 ऊपर के जाओगे तो स्ट्रक्चर के अंदर अब मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर से ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर अब चेंज होने की कोशिश कर रहा है,
राइट आप एक ग्रीन लाइन देख सकते हैं, ग्रीन लाइन दैट इज इंडिकेटिंग एज ए। नाउ द स्ट्रक्चर विच इज चेंज अबाउट द टाइम एंड टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री के आसपास, 390 डिग्री के आसपास। अब आपने टाइम पैरेलली इंक्रीज करके आपने 100 सेकंड तक जो है वो स्टील को अब जब हीट किया तो फिर उसका स्ट्रक्चर है दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द मार्टेनसेटिक टू ऑस्टेनेटिंग। सेम द स्ट्रक्चर विल बी सेम अप टू दी 760 डिग्री सेल्सियस, 760 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो वही टेम्परेचर रेंज के साथ जो है अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब एक नैरो रेंज के अंदर वो 100 डिग्री तक उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे। अगर हम लोग जो है वो टाइम इंक्रीज करेंगे उसके साथ पैरेलली तो उसके अंदर ऑस्टेनेट टू पैरेट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। फिर पैरेट के साथ परलाइट के साथ सॉरी बेनेट जो है वो भी आपको ऑब्जर्व होगा। एक टाइम के साथ जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सेम चीज़ जो है वो आप देखोगे तो 760 डिग्री तक जब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तब आपने मैक्सिमम टाइम जो था वो 10 लाख सेकेंड्स तक का टाइम लिया था, तब उसके साथ जो है वो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दैट स्ट्रक्चर विच इज ऑफ द स्टील विच इज द लाइक ऑलमोस्ट लाइक दी परलाइट, राइट। अब सेम तरीके से आप देखोगे ना तो सेम तरीके से आप देखोगे तो जैसे ही उसका कूलिंग होगा तो वो परलाइट में से पहले क्या चीज़ करेगा, जैसे वो 10 लाख सेकेंड्स तक अब 10 लाख सेकेंड से अब 0 सेकेंड्स तक हमें वापस जाना है तो फिर वैसे वो परलाइट प्लस बेनेट दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर रहेगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री जब वो सेकेंड्स पहुंच जाएंगे और टेम्परेचर रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर आपका सेकेंड टेम्परेचर रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस और आपका साथ में सेकेंड्स हो जाएगा ऑलमोस्ट लाइक दी 10,000 सेकेंड्स, 10 lakhs to 10,000 सेकेंड्स, राइट। और इस तरीके से आप देखोगे तो परलाइट टू परलाइट प्लस बेनेट मिक्स स्ट्रक्चर, देन उसके बाद फिर से उसका बेनेट स्ट्रक्चर रहेगा और धीरे धीरे जैसे वो कूलिंग होता जाएगा, राइट, तब आप देखिएगा कि वो फिर से बेनेट प्लस मार्टेनसेट यानी जहाँ से हमने हीटिंग स्टार्ट किया था तब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कौन सा स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर था मार्टेनसाइट। अब जैसे ही वो हम लोग कूलिंग करके वापस आ गए तो वापस जो है वो मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वापस आने की कोशिश करेगा, पर उसके अब जो पार्टिकल्स हो गए ना वो एकदम फाइन पार्टिकल्स ग्रेन्स हो गए। ये आपको ये चेंजेस वहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑब्जर्व होते हैं। इसके साथ साथ भी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी इसके साथ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे दैट इज़ दी टेम्परिंग प्रोसेस। अब टेम्परिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है और क्यों की जाती है, तो आप देखिए द ब्रिटलनेस ऑफ द मार्टेनसाइट विच इज़ मेक द हार्डनेस स्टील अनसूटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अब जैसे ही हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं स्टील के ऊपर तो फिर उसके साथ वो जो है वो उसका जो लास्ट जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर रहता है और मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टील को हमेशा ब्रिटल बना देता है। वो नॉर्मली वो फोर्स जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता है, राइट, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के अंदर। तो उस चीज़ के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो ब्रिटल स्ट्रक्चर रह जाएगा और हम उस स्टील को किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अब टेम्परिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ रहेगी, द डिफरेंट कूलिंग रेस बिटवीन द एज एंड द कोर ऑफ द कंपोनेंट विच इज़ रिजल्ट इन द इंटरनल स्ट्रेसेस, राइट। अब उसकी वजह से जो है वो इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो अंदर स्टील के अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज रिक्वायर द स्टील विच इज़ टू बी टेम्पर्ड, राइट। अब वो इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए आप उस स्टील को जो है एक तरीके से उसको टेम्पर्ड करना पड़ेगा बाय द रीहीटिंग टू द लोअर टेम्परेचर। अब उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हार्डनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद टेम्परिंग कैसे करते हैं, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर उस स्टील को फिर से हमें हीट करना पड़ेगा टू रिड्यूस द हार्डनेस। जैसे ही हम लोग फिर से उसको हीट करेंगे तो फिर उसकी हार्डनेस जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड विच इज़ इम्प्रूव द टफनेस
और वो ज़्यादा ब्रिटल में से वो क्या चीज़ होने लगेगा, टफ होने लगेगा, यानी वो फोर्स को सस्टेन करने की उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी. दिस ट्रीटमेंट विच इज़ कन्वर्ट सम ऑफ द मार्टेनसाइट इनटू द बेनाइट. राइट, अभी हमने यहाँ पे जो देखा था कि जो मार्टेनसाइट था वो जैसे नॉर्मल लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमने जैसे उसको हीट किया, दैट मार्टेनसाइट विच इज कन्वर्टेड इनटू द बेनाइट विद द फाइन पार्टिकल्स, एंड दैट बेनाइट स्ट्रक्चर हैज अ बेसिक प्रॉपर्टी विच इज द टफनेस. राइट, वो स्टील जो है वो टफ बन जाएगा, यानी वो फिर एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है. यानी आप देखिए कि अलग अलग कलर्स के अंदर जो है वो हार्ड टू टफ जो है वो आपको दिख रहा है, कैसे वो स्टील जो है वो एक टेम्परेचर रेंज के अंदर, यानी आप देखिए जब अप्रोक्सीमेट जो टेम्परेचर था वो सेल्सियस के अंदर जो था वो जैसे आपका टेम्परेचर अगर हम लोग उसको टेम्परिंग करते 230 डिग्री के अंदर टेम्परेचर रेंज के ऊपर, तो आप देखिए जो उसके उस तरीके से वो जो है वो काफ़ी टफ हो जाता है, और उसको हम लोग लेथ के टूल बनाने के लिए, स्क्रैपर्स बनाने के लिए, स्क्राइबर्स बनाने के हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फिर टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ किया 240 डिग्री तक, तो फिर हम लोग ड्रिल बना सकते हैं, मिलिंग कटर्स बना सकते हैं. वो इस टेम्परिंग रेंज तक, यानी आप देखिएगे तब जब तक वो 300 डिग्री तक आपने हार्ड करने के बाद उसको टेम्पर किया, राइट, लोअर टेम्परेचर रेंज के ऊपर, तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें से जो है वो स्प्रिंग्स बना सकते हैं, स्पैनर्स बना सकते हैं, नीडल्स बना सकते हैं. इस तरीके से वो पूरा जो स्टील है वो पूरा टफ स्टील जो है वो बन जाता है. नाउ द आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस विच इज़ द ऑस टेम्परिंग प्रोसेस, जैसे टेम्परिंग प्रोसेस हो गया अपना. नाउ द अनदर टू प्रोसेस विच इज़ द एस टेम्परिंग प्रोसेस, ऑस टेम्परिंग प्रोसेस. अब इसके अंदर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है दैट इज़ द ऑस्टेनाइट स्टील का, इसलिए जो है उसको हम लोग ऑस टेम्परिंग प्रोसेस बोल सकते हैं. द आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट बाय विच द ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ टू बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन. अब उसके अंदर जो स्टील है उसके अंदर जो ऑस्टेनाइट है वो एक तरीके से बेनाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेगा. उस टेम्परेचर उस प्रोसेस को जो है हम ऑस टेम्परिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट, आइसोथर्मल एनलिंग प्रोसेस. हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील बाय द ऑस्टेनाइजिंग. अब हमें ऑस्टेनाइजिंग प्रोसेस अगर करनी है तो इस तरीके की जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती है, राइट, द कूलिंग विच इज़ रैपिडली टू द टेम्परेचर बिटवीन द A1 एंड नोज ऑफ द TTT कर्व. जैसे ये नोज ऑफ TTT कर्व हो जाएगा अपना नोज, यानी आप देखिए कि एक नाक तरीके का जो शेप बन रहा है, राइट, उस शेप के वहाँ तक उसको कूलिंग कर देना है, राइट, एंड होल्डिंग until the austenite ट्रांसफॉर्मेशंस टू द परलाइट. अब वहाँ तक उसको होल्ड करना है, उस तरीके से उसको कूल करना है. जैसे जो ऑस्टेनाइट है आपको देखिए कि आपको 300 डिग्री 390 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो आपको ब्लू लाइन के साथ जो ऑस्टेनाइट दिख रहा है, उस नोज के टेम्परेचर लाइन के साथ उसको फटाफट एकदम उसी टेम्परेचर उसी टाइम के साथ, यानी आपको देखना है कि उसको क्वेंचिंग करना है, राइट. वो क्वेंचिंग वो कूल कैसे हो जाना चाहिए, आपको क्वेंचिंग मीडियम ऐसे आपको सिलेक्ट करना है जैसे ही आपने उसको टेम्परिंग किया है, राइट. टेम्परिंग करने के बाद ऑस टेम्परिंग के अंदर 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर जो है वो कूल हो जाना चाहिए. यानी वो जो नोज़ वाला जो आपका शेप रहता है वो शेप आप देखिए कि नीचे आप उसको प्लॉट करेंगे तो 1 सेकंड के ऊपर आता है, राइट, 1 या 2 सेकंड के ऊपर जो है वो आता है. और उस टाइम पे ऑस्टेनाइट में से जैसे वो परलाइट वाले स्ट्रक्चर में है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको ऑस टेम्परिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट. अब हमें जो डिस्कस करना है, जैसे यहाँ पे आपकी जो है वो बल्क प्रॉपर्टीज चेंज करने की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गई, राइट. अब हमें सपोज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज़ करके सिर्फ हमें जो सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसकी सरफेस की ही प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी है, अल्टर करनी है, तो फिर जो है वो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस ये एक तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही है, उसको हम लोग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, राइट. उस सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो उसको यूज़ करके जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हीट ट्रीटमेंट की मदद से जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट.
इट इज़ सिलेक्टिवली हीटिंग द सर्फेसेस, राइट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहती है कि आप जो है वो सिलेक्टिव जो सरफेस रहती है उसको हीट करके उसको हार्ड कर सकते हैं, राइट। ए रैपिडली हिट द सरफेस ऑफ द मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील की जो सरफेस रहती है उसको रैपिडली हीट करके अप टू द टेम्परेचर लिमिट ऑफ द A3 टेम्परेचर लाइन एंड देन क्वेंच। यानी A3 यानी आप देख लीजिए जो A3 जो टेम्परेचर लाइन रहती है वो ना लोअर क्रिटिकल से लेके अपर क्रिटिकल तक की लाइन रहती है, वो दोनों के लिए। जैसे आपका हाइपोयूटेक्टेड स्टील हो गया और हाइपर यूटेक्टेड स्टील हो गया, दोनों के केसेस के अंदर जो है उस टेम्परेचर लाइन के अंदर A3 यानी अपर क्रिटिकल टू लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो है उस रेंज के अंदर यानी 723 से लेके 910 डिग्री सेल्सियस या 923 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसके बीच जो है उसको आपको हीट करके फिर उसको क्वेंच कर देना है उस पर्टिकुलर सरफेस को। देन केस डेप्थ, द डेप्थ below the surface of the steel at which the hardening which is occur, the surface hardening and the carburizing process, इसके जो प्रोसेस है वो सरफेस हार्डनिंग और कार्ब्यूराइजिंग प्रोसेस जो है वो बोल सकते हैं। यानी उसको केस हार्डनिंग, जो ऊपर का जो आपका बॉक्स होगा ना केस, दैट मीन द बॉक्स। अब केस हार्डनिंग को हम लोग कार्ब्यूराइजिंग बोल सकते हैं। उसके अंदर सरफेस हार्डनिंग के अंदर एक और प्रोसेस है दैट इज द क्नाइडिंग प्रोसेस। देन एक और प्रोसेस है जिसको हम कार्बन नाइट्रेटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और उसके बाद एक जो प्रोसेस रहेगी दैट इज द फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। अब उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द सरफेस हार्डनिंग विच इज द केस हार्डनिंग प्रोसेस। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द केस हार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस अ सरफेस विच इज रेजिस्टेंस टू द वियर while maintaining the overall toughness and strength of the steel core, right। ये सरफेस केस हार्डनिंग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, यानी जो आपका जो प्रोडक्ट है जो सरफेस है आपके स्टील की वो एक तरीके से वियर रेजिस्ट हो जाए, यानी उसके ऊपर जो है वो घसारा ना लगे, राइट, और ओवरऑल वो टफ हो जाए, उसके बाद एक इनफ स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए ताकि वो जो स्टील के अंदर जो है वो वियर रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो। नॉर्मली यूज्ड ऑन अ स्टील विथ ए लो कार्बन कंटेंट, ये जो है वो एक तरीके के स्टील के ऊपर जो पॉसिबल है जहाँ पे जिसके अंदर द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज़ लो एंड इंट्रोड्यूस कार्बन बाय द डिफ्यूजन विच इज़ द कार्ब्यूराइजिंग। अगर उसके अंदर कार्बन है तो कार्बन को डिफ्यूज कर देना है, राइट। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ फ्यूज हो जाएगा। दैट प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज ए कार्ब्यूराइजिंग प्रोसेस इन टू द लोकल सरफेस विच इज़ रिक्वायरिंग में ट्रीटमेंट। द हीटिंग ऑफ द स्टील in the presence of a solid, liquid and gas rich in the carbon। हीटिंग जो है वो स्टील का आप जो है वो सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस स्टील गैसेस वे के अंदर जो है उसको कर सकते हैं जिसके अंदर जो कार्बन जो है वो रिच अमाउंट ऑफ कार्बन का जो अमाउंट हो रिच कार्बन अमाउंट हो, जिसके अंदर जैसे हवा के अंदर कार्बन है, गैस के अंदर कार्बन है, लिक्विड के अंदर कार्बन है, उस मीडियम को यूज़ करके भी आप जो है वो स्टील को हीट कर सकते हैं। वो जो जिस इस तीनों मीडियम के अंदर जो कार्बन है वो स्टील के कार्बन के साथ डिफ्यूज़ होके उस स्टील को जो है वो हार्ड करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। नाउ द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ द क्नाइडिंग प्रोसेस। नाउ in the knitting process the hardening of the surface of the steel with the carbon and nitrogen। यहाँ पे वहाँ पे क्या चीज़ थी, केस हार्डनिंग के अंदर सिर्फ हम लोग कार्बन का यूज़ कर सकते थे। वो कार्बन जो है वो किसी भी स्टेट में अवेलेबल होना चाहिए, यानी आप उसको सॉलिड में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी ले सकते हैं, गैसियस वे में भी कार्बन यूज़ कर सकते हैं, और उसको जो स्टील सरफेस थी वो जो है उसके साथ वो डिफ्यूज़ होके फिर उसको हार्ड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कार्बन प्लस नाइट्रोजन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बाथ ऑफ द लिक्विड क्नाइडिंग सॉल्यूशंस। इसके अंदर जो है वो लिक्विड क्नाइडिंग सॉल्यूशंस है उसको यूज़ करके, जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, उसको साथ में रिएक्ट करके उस स्टील को जो है वी हैव टू हीटेड इनटू द मोल्टन क्नाइडेट एट विच इज़ अबाउट द 850 डिग्री सेल्सियस विच इज़ फॉलोड बाय द क्वेंचिंग। उसको 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके फिर उसको क्नाइडिंग बाथ देना है, राइट।
राइट। उस स्टील को अब नाइडिंग सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन है, उस तरीके के लिक्विड के अंदर उसको डुबा देना है, उसको क्वेंच कर देना है। उस तरीके से जो प्रोसेस की जाती है उसको नाइडिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। द कार्बन एंड नाइट्रोजन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टील। अब वो क्या करेगा कि उस जो एक बात है ना, क्वेंचिंग लिक्विड है, उसके अंदर नाइट्रोजन का भी प्रेजेंस है और कार्बन का भी प्रेजेंस है। तो स्टील जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस करेगा। अब दोनों को जैसे उस हीटिंग प्रोसेस के बाद जैसे ही वो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस करेगा तो वो जो है वो एक तरीके से वो हार्ड बन जाएगा, राइट। अब उस प्रोसेस को है वो हम लोग नाइडिंग प्रोसेस बोलते हैं। नाउ द थर्ड प्रोसेस विच इज द कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस। तो what happen in the carbonitrading process? The hardening of the surface of the steel with the carbon and nitrogen, right? अब यहाँ पे भी जो है वो स्टील की सरफेस को जो है वो कैसे हार्डनिंग करना है, विथ यूजिंग ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन। द स्टील विच इज हीटेड इन ए गैसियस मिक्सचर ऑफ एमोनिया एंड द हाइड्रोकैरॉन्स। अब स्टील को एक गैसियस मिक्सचर्स के अंदर जो है वो यूज़ करना है। किस गैसियस मिक्सचर को हमें यूज़ करना है, यानी जो गैसियस मिक्सचर जो है ना वो जैसे स्टील को एक फर्नेस के अंदर जो है उसको हीट करना है। जब हम हीटिंग करेंगे ना उस टाइम के उस टाइम पे आपको वहाँ पे जो है वो एक गैस का फ्लो अप्लाई करना है। अब वो गैस कौन सा होगा, एक तो एमोनिया गैस होगा और दूसरा जो है वो हाइड्रोकैरन गैस होगा। उस हाइड्रोकैरन और एमोनिया का मिक्सचर करके उस मिक्सचर को जो फर्नेस के अंदर अप्लाई करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हीटिंग। अब वो रिएक्शन की वजह से जो है वो एक सरफेस जो है वो हार्डनेस उसकी डेवलप्ड हो जाएगी। दिस इज द कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज द नाइट्रेटिंग प्रोसेस। अब नाइट्रेटिंग प्रोसेस क्या चीज होती है, इन अनदर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए नाइट्रेटिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द नाइट्रोजन। अब इसके अंदर नाइट्रोजन को यूज करके नाइट्रोजन को कार्बन के साथ डिफ्यूज करना है। नाइट्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टील के अंदर नाइट्रोजन है वो इंट्रोड्यूस करना है, अंदर डालना है, बाय पासिंग द एमोनिया गैस थ्रू ए मफेल फर्नेस विच इज कंटेनिंग द स्टील ऑफ द नाइट्रेटेड। अब फर्नेस के अंदर जो है वो एमोनिया गैस, वहां पे एमोनिया के साथ क्या चीज कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोकैरॉन्स जो है उस और एमोनिया दोनों का मिक्सचर करे तब जो हो वो प्रोसेस हो उसको बोला जाता है कार्बोनाइट्रेटिंग। अब यहाँ पे सिर्फ जो है फर्नेस के अंदर जिस स्टील को हमें हार्ड करना है उस स्टील को फर्नेस के अंदर हीट करने के दौरान जो है वो एमोनिया गैस जो है फर्नेस के अंदर से पास करना है। वो जैसे ही स्टील के सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो जो प्रोसेस जो हो जाएगी दैट इज प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए नाइट्रेटिंग प्रोसेस ऑफ द स्टील। द टेम्परेचर विच इज यूज्ड विच इज बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। उस फर्नेस के अंदर स्टील को जो है वो 723 डिग्री तक मैक्सिमम आपको हीट करके एमोनिया गैस को पास करना है। दी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू द वियर एंड कोरोजन और ग्रेटेस्ट सरफेस हार्डनेस विच इज अचीव विद द नाइट्रेटिंग प्रोसेस। अब जैसे आपके गियर्स हो गए उसकी सरफेस को आपको हार्ड करना है, वो वियर रेजिस्टेंस और कोरोज रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। यानी एमोनिया गैसेस जो है उसके वो जो है वो नाइट्रेटिंग प्रोसेस जो है वो सरफेस को बना के वो उसको वियर नहीं होने देगा, कोरोजन नहीं होने देगा और एक तरीके से ग्रेटर सरफेस हार्डनेस जो है उसको बना देगा। एंड द अनदर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। अब ये जो है वो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो लास्ट प्रोसेस है, दैट इज द फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। अब फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक फ्लेम जैसे अपना गैस का टॉर्च रहता है ना, गैस वेल्डिंग सभी ने देखा होगा, राइट। अब गैस वेल्डिंग टॉर्च जो यूज़ करके जो टॉर्च होती है ना, ऐसी तरीके से टॉर्च को यूज़ करके जिस पर्टिकुलर सरफेस के आपको हीट करना है उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो है वो हम लोग हीट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर ऑल्टर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लैम। यानी इसके अंदर जो है वो हार्डनेस इंप्रूव होती है विथ यूजिंग दी फ्लैम। सो द हीटिंग ऑफ द सरफेस विच इज बीइंग हार्डनेड विच इज अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर with an oxyacetylene flame before quenching it in a spray of the water। ये कैसे किया जाता है,
आपको ऑक्सी एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैसेस का मिक्सचर करके एक फ्लैम डेवलप करना है, राइट। वो फ्लैम जो है उसकी मदद से आपको जिस स्टील की प्लेट या सरफेस को आपको हीट कर रहा है उसको हीट करके फिर उसके ऊपर स्प्रे करके वाटर स्प्रे करके उसको हार्ड करने की कोशिश करना है। दैट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए फ्लैम हार्डनिंग प्रोसेस। दिस इज अ सरफेस hardening process which is resulting in a hard surface which is layer of about 2 mm to 6 mm deep। इससे जो है वो सरफेस को 2 mm से लेके 6 mm तक हार्ड कर सकते हैं। The main difference between this process and the other surface hardening process is that the composition of the steel which is being hardened is not changed। अब इस प्रोसेस की वजह से जो है वो स्टील का बेसिक कंपोजिशन यानी इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ आयंस जो है वो चेंज नहीं होता। फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस करके अगर करेंगे तो ये प्रोसेस फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस और अदर जो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये प्रोसेस को यूज़ करके जो है अगर यूज़ करेंगे तो भी जो स्टील का जो बेसिक कंपोजिशन है वो कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं होगा। उसके जो परसेंटेज ऑफ अंदर जो एलोंग एलिमेंट्स है उसकी जो परसेंटेज है वो चेंज होते नहीं है। सो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमने बल्क हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो दोनों प्रोसेस को हमने आज डिस्कस कर ली है। उसके साथ हमने टीटीटी डायग्राम और जोमिनी हार्डनेस टेस्ट भी हमने डिस्कस किया। मैं कल के लेक्चर के अंदर आपके साथ एक लैब शेयर करूंगा, उस लैब के अंदर कैसे जोमिनी हार्डनेस टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है वो आपको वहाँ पे दिखेगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। अब जैसे ही आप ये वीडियो लेक्चर देख ले उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है। सो थैंक यू सो मच for watching this video. This is all about the heat treatment process of the